Assalamu alaikum ji. This is Saad Shahid, and in this video we are going to discuss electronegativity. बेटा ट्रेंड्स क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या है, पास्ट पेपर क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, एंड वी विल आल्सो यूज द पोलिंग स्केल एंड विल रिलेट दैट पोलिंग स्केल विद द टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें आयनिक बॉन्डिंग आ जाता है, वी हैव कोवेलेंट बॉन्डिंग को कि कब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना होएगा कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बने, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बने. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस थिंग let me highlight one point कि हम पास्ट पेपर क्वेश्चंस को भी साथ साथ की डिस्कस करेंगे. सो चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ अपने टॉपिक को कवर करने के लिए. अस्सलाम वालेकुम जी. In this video we are going to discuss the electronegativity. As you can see the topic mentioned on your screen, electronegativity, और इसी से हम generate करेंगे concept of ionic bonding का और covalent bonding का कि which bonds are ionic and which bonds are covalent, and we'll also discuss the past paper questions which are related to these topics. So let's start from electronegativity. बेटा electron से है, negativity, electron is carrying a negative charge. तो बेटा जो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं दे विल कैरी अ नेगेटिव चार्ज. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को आपने इसी टर्म में एसोसिएट करवाना है. तो व्हाट इज एक्चुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इट इज एन एबिलिटी. द फर्स्ट टर्म व्हिच you must have to clear in your mind कि it is the ability of an atom. एटम्स की एबिलिटी है जो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करती है इन अ मॉलिक्यूल. फॉर एग्जांपल यू हैव अ मॉलिक्यूल HCl. बेटा देयर इज अ बॉन्ड इन बिटवीन दिस H and this Cl. One bond consisting upon two electrons. So it has two electrons. Let me highlight that. This is dot and this is cross. ये टू इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि एक बॉन्ड बना रहा है. सो बेटा वी हैव दिस मॉलिक्यूल. इन दिस मॉलिक्यूल वी हैव टू एटम्स H and Cl. Which one is attracting these two electrons towards itself more? That is chlorine. Chlorine अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है. That's why it will carry negative charge on it. और जो कम अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को towards itself in a molecule, that will carry the partial positive charge. बेटा ये जो attractive forces हैं यहाँ पे जो हम ability की बात कर रहे हैं, this is called electronegativity. The ability of an atom to attract the shared pair of electrons towards itself in a molecule. तो बेटा electronegativity, ionization energy and electron affinity has the same trend. For example, we discussed in the previous video that ionization energy decreases from top to bottom in the periodic table. It increases from left to right in the period. Similarly, electron affinity भी increase करती है in the period when we are moving from left to right. Top से bottom electron affinity decrease करती है. Similarly, electronegativity भी बेटा from top to bottom it decreases, and when we are moving from left to right it increases. तो बेटा H और Cl में से Cl is at the right hand side, so इसकी electronegativity ज़्यादा है. That's why it attracts the electrons towards itself more. That's why it is carrying a partial negative charge. So by using this concept, एक तो हमें पता चलता है polarity कब induce हो रही है. तो an atom is carrying a partial negative charge because it has more attraction for the electrons. ठीक है, in a molecule, in a particular molecule. So यहाँ पे अगर हमने क्लोरीन पर partial negative charge लगाया, it means it has more attraction. So summarizing the points कि ट्रेंड इनका क्या होता है? It increases in the period and decreases in group.
It has the same trend as we have already discussed for ionization energy and electron affinity. तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक एमडी कैट का क्वेश्चन है, 2011 में ये क्वेश्चन अपीयर हुआ था. द एबिलिटी ऑफ एन एटम इन अ कोवेलेंट बॉन्ड टू अट्रैक्ट द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. यानी कि ये डेफिनेशन ही सेम क्वेश्चन पूछा गया है एमडी कैट में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. So I didn't mention the MCQ's options, लेकिन question ये बिल्कुल same है. So electronegativity is the answer because we have already discussed the definition of this topic. तो बेटा electronegativity तो हमने discuss किया. अब Pauling scale है from 0 to 4.0 Pauling scale. By using that concept we can identify either the bond is polar, either the bond is non-polar और इट इज आयोनिक. ठीक है, तो पॉलिंग स्केल को यूज करते हुए वी कैन आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द बॉन्ड. नेचर ऑफ बॉन्ड को किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. देखिए यहां पे हमने आइडेंटिफाई करना है बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को. इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.7, तो बेटा दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड एज ionic bond. And if the electronegativity difference is less than 1.7, तो बेटा that is known as covalent bonding. So that particular bond is called as covalent bond. अब बेटा covalent bond में we have two different types on the basis of the electronegativity difference. अगर मैं इसी से further 2 points extract करूं तो बेटा we have polar concept and we have another concept for the non-polar bonds. बेटा अगर 1.7 से कम है but it is not exactly 0 then it is polar. और अगर electronegativity का difference it is equivalent to 0, in that case the bond is non-polar bond. I'm talking about the bonds, not the compounds. So यहाँ पे polar bond कौन सा हो जाएगा? That is having the electronegativity difference less than 1.7 but not exact 0. Got it? So here is one past paper question. ये भी MD CAT का ही क्वेश्चन है. I think 2014 या 15 का ये क्वेश्चन है. The electronegativity difference, the electronegativity difference of HCl molecule is equals to 1.0. So the nature of
बॉन्ड इज, तो बेटा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम है तो दैट मस्ट बी कोवेलेंट। तो ये यानी कि HCl बॉन्ड इज कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड के अलावा इट इज पोलर और नॉन पोलर, इट इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1.7, तो बेटा इट लाइज ओवर हियर, तो इट इज अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सो HCl का बॉन्ड कौन सा हुआ? इट इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। बेटा प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट है ना, बाय यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट वी आर गेटिंग द नेचर ऑफ द बॉन्ड्स। ये जस्ट इट इज अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट और इट इज नॉट गिविंग यू द एक्चुअल रिजल्ट्स, ये जस्ट आइडिया आपको थ्रो करता है। वी हैव मेनी एक्सेप्शंस जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से ज़्यादा आ जाए, बट इट इज़ polar covalent compound. For example, you have HF molecule, HF, this is a molecule, HF molecule में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है बेटा 1.9 का। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है? 1.9 का, बट इट इज नॉट आयोनिक, हम इसको आयोनिक कंपाउंड नहीं कंसीडर करते, इट इज अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड ही, ठीक है, ये पोलर कोवेलेंट ही है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सो जस्ट रिमेंबर कि ये यूज किया जा सकता है टू आइडेंटिफाई द नेचर, एक आइडिया आपको मिल सकता है। जनरली कोवेलेंट बॉन्ड्स के लिए स्टेटमेंट क्या यूज करते हैं? द बॉन्ड दैट इज फॉर्म इन बिटवीन द टू नॉन मेटल्स, ठीक है, जो मोस्टली टू नॉन मेटल एटम्स के दरमियान में बॉन्डिंग होती है, दैट इज कोवेलेंट बॉन्डिंग। इफ बोथ एटम्स आर शेयरिंग one इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल H और F, fluorine has 7 electrons in the outermost shell, hydrogen has 1 electron in the outermost shell, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट और डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, सो दैट्स व्हाई दे विल शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स। सो शेयरिंग की वजह से इनके दरमियान में जो बॉन्ड बनता है दैट इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो बेटा एक इसके लिए की कॉन्सेप्ट भी याद रखें, कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स बन सकते हैं दो एटम्स के दरमियान में, जितने उनको इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो बेटा फ्लोरीन नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई दे आर मेकिंग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर यहां पे होता आपके पास, इफ यू हैव ऑक्सीजन O2, तो बेटा ऑक्सीजन क्या होएगा? सिंगल बॉन्ड बनाएगा या डबल बॉन्ड बनाएगा? ऑक्सीजन बिलोंग्स फ्रॉम द ग्रुप नंबर 6, so it has 6 electrons in the outermost shell, so it needs 2 electrons, so that's why it will make double covalent bond, ठीक है। N2 का अगर स्ट्रक्चर आप देखते हो, N2, N belongs from the group number 5, so it needs 3 electrons to complete the outermost shell, so it will make 3 bonds. So triple covalent bond is formed in between the 2 nitrogen atoms. तो बेटा एक और कॉन्सेप्ट याद रखो कि अगर दोनों एक जैसे एटम्स हैं, so they will make non-polar bond, ठीक है, यानी कि ये O2 के दरमियान में you can see the double bond, double covalent bond जो है, ये covalent bond क्या होएगा? non-polar होएगा, because जो ऑक्सीजन एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, सेकंड की भी वही है, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो होएगा दैट इज 0, सो होमो एटम्स जितने भी होंगे दे विल शो द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0, ठीक है। सो दीज आर नॉन पोलर बॉन्ड्स, नॉन पोलर बॉन्ड्स, ठीक है। इसी तरह यू कैन से क्लोरीन Cl2, क्लोरीन नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन, Cl और Cl के दरमियान में देयर इज सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि दोनों एटम्स को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सो अगेन दिस इज नॉन पोलर बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है दिस वन इज नॉन पोलर, ये जो सिंगल बॉन्ड है। ये ट्रिपल बॉन्ड्स जो यहां पे मेंशन किए हैं, दीज आर 3 non-polar bonds in between the 2 nitrogen atoms. ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान में डबल बॉन्ड बना है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, सो
ये जो दोनों बॉन्ड्स हैं बेटा दोनों नॉन पोलर बॉन्ड्स हैं. सो जो होमो एटम्स के दरमियान में बॉन्ड क्रिएट होएगा दैट इज नॉन पोलर बॉन्ड, और जो हेटेरो एटम्स के दरमियान में बॉन्ड क्रिएट होएगा दैट कुड बी पोलर बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम होता है जनरली, बट वी हैव एक्सेप्शंस. सो होप सो ये कॉन्सेप्ट पोलर और नॉन पोलर का क्लियर हो गया होगा. लेट मी डिस्कस वन मोर क्वेश्चन. ये 2016 का MDCAT क्वेश्चन है दैट इज रेलेवेंट टू दिस टॉपिक, कोवेलेंट बॉन्डिंग का, पोलर और नॉन पोलर का. सो लेट्स एक्सटेंड दिस टॉपिक टुवर्ड्स कि इलेक्ट्रॉन्स तो आपको पता चल सकते हैं, उनमें बॉन्ड्स तो पता चल गए कितने बॉन्ड्स हैं, डबल है, ट्रिपल है या सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन उसमें कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं और कितने पाई बॉन्ड्स हैं. दिस इज व्हाट वी हैव टू डिस्कस इन दिस क्वेश्चन MDCAT का 2016 का क्वेश्चन है. कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल. बेटा एक आसान सा ट्रिक बता रहा हूं. Whenever you will have a single bond, जहां पे भी सिंगल बॉन्ड्स होंगे वो तमाम सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं. ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड्स सिंगल बॉन्ड्स होंगे. एक तो ये पॉइंट याद रखें. अगर डबल बॉन्ड कहीं पे आपको नजर आता है इन बिटवीन द एटम्स, यू हैव अ डबल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड, तो बेटा उनमें से जस्ट एक सिंगल बॉन्ड होएगा. पहले वाला जो बॉन्ड है दैट इज सिग्मा, और बाकी जितने भी बॉन्ड्स होंगे वो तमाम पाई बॉन्ड्स होते हैं. एज यू कैन सी ओवर हियर, यहां पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपको इथीन का, CH2 डबल बॉन्ड CH2. सो अगर इसके स्ट्रक्चर को आप ऑब्जर्व करते हो, सो हाउ दिस मॉलिक्यूल इज हैविंग इट स्ट्रक्चर लाइक दिस. दिस इज CH2 एंड CH2. ठीक है, तो बेटा दिस सिंगल बॉन्ड इट मीन्स वी हैव sigma bond, this is sigma bond, this is sigma bond, this is sigma bond. So बेटा यहां पे डबल बॉन्ड आ गए तो फर्स्ट बॉन्ड तो हमेशा होएगा सिग्मा, जो सेकंड बॉन्ड है तो दैट इज पाई. अगर यहां पे ट्रिपल बॉन्ड होता तो फर्स्ट होता सिग्मा, बाकी दोनों होते पाई बॉन्ड्स. ठीक है, सो कितने सिग्मा है और कितने पाई हैं? इट हैज 1 पाई बॉन्ड एंड 5 सिग्मा बॉन्ड. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो वी हैव द फर्स्ट ऑप्शन. As you can see over here, this one is the correct option, A. Now have a look on the question number 2. This is the structure of H2SO4 sulfuric acid. Beta sulfuric acid में how many sigma electrons are there and how many pi electrons are there? So सबसे पहले तो you have to identify कितने sigma bonds हैं. तो बेटा single bonds वाले क्या होंगे? Sigma bonds. ठीक है. So how many sigma bonds are here? देखो this is single bond, तो ये sigma हो गया. This is single bond, ये sigma हो गया. यहाँ पे double bond, you can see in between the sulfur and oxygen there is a double bond. So बेटा एक होएगा sigma और एक होएगा pi. एक होएगा sigma और एक होएगा pi bond. So we cannot neglect the bond in between the oxygen and hydrogen atom. So बेटा there is one bond over here and one bond over here. ये single bond है तो यहाँ पे भी sigma ही होंगे. Got it? तो how many sigma bonds present in this molecule? 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 6 sigma bonds हैं. बेटा one bond is having how many electrons? We have already discussed in the first point. HCl के दरमियान में there is one bond, but one bond is formed in between the two atoms by sharing one electron, by sharing one pair of electron. So यानी कि 2 electrons होते हैं एक बॉन्ड में. तो बेटा यहाँ पे टोटल कितने सिग्मा electrons हो गए? We have 12 sigma electrons. And how many pi electrons? There are 2 pi bonds. So it means we have 4 pi electrons. तो बेटा 4 pi electrons are present in this molecule. So in this way examiner can ask any question by giving you any compound जिसमें से सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है. यहाँ पे ही आपको एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स.
So you have this compound CH and CH. This is ethyne. So how many sigma electrons are there and how many pi electrons are there in this molecule? This is what you have to answer me in the comment box. So I'll give you the feedback after that. So बेटा सिग्मा बॉन्ड की हमने बात की और पाई बॉन्ड की बात की. सिग्मा बॉन्ड की अगर डेफिनेशन की बात की जाए, व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड? जनरल कॉन्सेप्ट तो हमें पता चल गया कि दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड. सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा बॉन्ड होएगा. स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इट नीड्स मोर एनर्जी टू ब्रेक इटसेल्फ. तो 2014 में इसकी डेफिनेशन का क्वेश्चन पूछा गया कि सिग्मा बॉन्ड होता क्या है. सो हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन. When two partially filled orbitals overlap means they are mixing together in a way that probability of finding the electron is maximum around the line joining of two nuclei. Beta, whenever two orbitals are overlapped in a way कि दोनों के heads आपस में मिल जाएं, head to head overlapping होएगी, so it always create a sigma bond. ठीक है, वो हमेशा क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड बनाएगा. तो यहाँ पे आपके कहा गया कि टू न्यूक्लियाई है, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द टू न्यूक्लियाई. सो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम फाइंडिंग इसकी यहाँ पे हो रही है. सो इट इज़ मेकिंग अ सिग्मा बॉन्ड. अगर ये पैरेलल ओवरलैपिंग होती या साइड वे ओवरलैपिंग होती तो इन दैट वे वी कैन से कि पाई बॉन्ड बनेगा. ठीक है. When two partially filled orbitals overlap in a way that probability of finding electron is maximum around the line joining of two nuclei will form sigma bond. बेटा head to head overlapping की यहाँ पे बात की जा रही है. So for example you have hydrogen का होता है H, it has this nucleus, and there is another H, it has this nucleus. So बेटा इन दोनों ने जब overlap करना है, this is hydrogen when interacts with another hydrogen, so they will overlap together in this way. So overlapping से it is making a sigma bond. So मुकम्मल तौर पे overlap हो गए. This head is diffused into this. So nucleus इनके आपस में overlapping होती जा रही है. Nucleus आपस में in this way it shows the overlapping, so it is making a sigma bond. So बेटा electronegativity से we started. electronegativity का ट्रेंड क्या होता है? पॉलिंग स्केल से आयोनिक और कोवेलेंट की वैल्यूज को किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है, किस तरह से रिलेट करवाया जा सकता है. कोवेलेंट बॉन्डिंग में वी डिस्कस सिंगल बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड. apart from this we also discuss the polar covalent bond and non-polar covalent bond, and we discuss some of the past paper questions here. And now moving towards the ionic bonding. Ionic bonding में हमने कहा कि electronegativity if it is greater than 1.7 or 1.7 भी अगर होएगी तो it makes an ionic bond. तो बेटा ionic bonding में the first point which you must take in your mind के the ionic bonding always form in between the metal and the non-metal. ठीक है. आयनिक बॉन्डिंग के लिए फर्स्ट पॉइंट क्या होएगा आपका? द बॉन्ड दैट इज फॉर्म इन बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल. मेटल एंड नॉन मेटल के दरमियान में जो बॉन्ड बनेगा, सो दैट इज आयनिक बॉन्ड. बेटा वाई मेटल और नॉन मेटल? बिकॉज मेटल हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स. मेटल्स आर electropositive elements. ठीक है. metals have tendency to lose electrons. तो metals after donating electrons it will form a cation. ठीक है. और non metals are electronegative elements, so they have tendency to accept the electrons. They are electron acceptors. Metals are electron donors. Metal electron transfer करते हैं, completely transferring of electron from metal atom to the non-metal atom, it makes an ionic bonding. So यहाँ पे बन जाएगा बेटा anion.
cation or anion. Anion is carrying a negative charge on it and cation is carrying a positive charge on it. तो बेटा ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाती है. सो दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्डिंग. तो यहां पे क्या आ जाएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन in between the oppositely charged ions. ठीक है, in between oppositely charged ions. So beta, this is called ionic bonding. Ionic bonding की कुछ प्रॉपर्टीज भी और कोवेलेंट बॉन्ड्स की कुछ प्रॉपर्टीज भी आपको क्लियर होनी चाहिए. आयनिक बॉन्ड्स जिन भी कंपाउंड्स में होता है दैट इज कॉल्ड एज आयनिक कंपाउंड्स. और आयनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज को अगर हम डिस्कस करें, दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, इट इज स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग. बेटा अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है सो दैट्स व्हाई इट हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. Ionic bonds are good conductors of heat, good conductors of electricity. इनमें से electricity pass कर सकती है when they exist in the liquid state or in the molten state. So this is the point that is important. They are conductors in liquid state or aqueous state, but they do not conduct in solid state. ठीक है, अगर आपके पास solid state होती है so they cannot conduct electricity. Solids में they do not conduct electricity. In liquids and in aqueous state, in molten state or in solution state, ये अदर वर्ड्स यूज किए जा सकते हैं. इन लिक्विड स्टेट और इन सॉल्यूशन स्टेट दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. एंड व्हाई दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट? बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. एंड द लास्ट पॉइंट, दे आर मोस्टली सॉल्यूबल इन द वाटर, बिकॉज आयनिक कंपाउंड्स ज़्यादातर सॉल्यूबल होते हैं वाटर में. कोवेलेंट कंपाउंड्स आर इनसॉल्यूबल इन द वाटर. आयनिक कंपाउंड्स हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, that's why they have high melting and boiling point. Covalent compounds have low melting and boiling point because it is relatively weaker than ionic bonding. ठीक है, ionic bond ज़्यादा strong है, covalent bond relatively कम stronger है. So इसी वजह से इनका melting और boiling point भी कम होता है. They are mostly insoluble in the water और ये soluble होते हैं organic solvents में ज़्यादातर. ठीक है, so these are basic differences in between the ionic compounds and covalent compounds. So inshallah in the next video we will discuss the coordinate covalent bonding and valence shell electron pair repulsion theory. That is very important topic for your MDCAT exam or for your NMDCAT exam or किसी भी relevant आप examination series में move करते हो तो Vesper theory is very important. So next video में हम उस topic को start करते हैं. Thank you. So students, we covered these topics, electronegativity का, ionic bonding और covalent bonding को discuss किया, polar और non-polar covalent bonding को भी discuss किया. But I just want to discuss one more point here. बेटा जो electronegativity का difference होता है 1.7 से अगर कम है तो हम कहते हैं कि that is
कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्डिंग में भी हमने कहा कि इफ दैट इज प्योर नॉन पोलर तो वहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 होना चाहिए, और अगर पोलर है तो इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 1.7, तो वो होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। आई टोल्ड यू इन दिस वीडियो कि ये जस्ट एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और ये वैल्यूज़ कुछ फ्लक्चुएट करती हैं। 1.9 वाले भी कुछ कंपाउंड्स हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वाले कंपाउंड्स हैं विच आर स्टिल पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स, जैसा कि HF की एग्जांपल को हमने डिस्कस किया। इसी तरह से 0 से 0.4 तक की जो रेंज होती है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, अगर 0 से 0.4 तक होएगा सो बेटा उन तमाम को भी हम नॉन पोलर में कंसीडर कर सकते हैं। सो इन वैल्यूज़ की रेंजेस को याद रखिएगा। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक्स को, जिसमें बॉन्ड एनर्जी होएगी, बॉन्ड लेंथ होएगी, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है। विल ऑल्सो डिस्कस द एस करैक्टर और डिफरेंट फैक्टर्स, इन पे कौन कौन से अफेक्ट करते हैं जो बॉन्ड एनर्जी को चेंज करें और बॉन्ड लेंथ को चेंज करें। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड मस्ट गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।